ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके बहुतरभक्ति नष्टके त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 6, the conversation between Narada and Vyasadeva, text number, sorry, Chapter 6 and text number 16. So let us begin. ध्यायतश्चरणाम्बुजं भावनिर्जितचेतसा अतो कण्ठाश्रु कलक्षस्य हृदि आसीन्मे शनैर्हरि। ध्यायतश्चरणाम्बुजं भावनिर्जितचेतसा उत्कुण्ठाश्रु कलक्षस्य हृदि आसीन्मे शनैर्हरि। ध्यायतश्चरणाम्बुजं भावनिर्जितचेतसा अतो कण्ठाश्रुकलक्षस्य हृदि आसीन्मे शनैर्हरि। Akshay, read the shloka. शरणाम्भुजं भावनिर्जितचेतसा उत्कण्ठाश्रुकलक्षया हृदय असिन्मे शनैर्हृदय। Next, Mataji's. ध्यायतश्चनं भोजं भावनिर्जितचेतसा अकण्ठयश्रुकलाक्षस्य हृदयासिन्मिशनैर्हरि। Next, Puja Mataji. ध्यायतश्चरणभोजं भव्यनिर्जतचेतसा अतस्तरुकलक्षस्य हृदय आसीन में सनिर्हरि। Anyone else? Word to word meaning. Dhyayataha, thus meditating upon Charanam Bhojam, the lotus feet of the localized personality of Godhead. Bhava Nirjitaha, mind transformed in transcendental love for the Lord. Chaitasaha, all mental activities, thinking, feeling, and willing. Atu Kanthaya, eagerness. Ashrukala, tears roll down. Akshashya, of the eyes. Hriday, within my heart, Asit appeared, me, my, Shanha without delay, Hari, the personality of Godhead. I think ये हम लोग पढ़ चुके हैं कल है ना. चलो मैं ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं फिर भी इसका हम लोग लिया तो. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead within my mind, transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead Shri Krishna appeared on the lotus of my heart. तो जैसे उन्होंने मेडिटेट करना शुरू किया भगवान के चरण कमलों पे, उनका हृदय जो है वो प्रेम भक्ति दिव्य प्रेम के प्रति क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, एंड उनके आंखों से अश्रु धारण होने लगा. एंड बिना किसी डिले के द लॉर्ड अपीयर्ड इन द लोटस ऑफ हिज हार्ट. तो इसका ये कल हम लोग पढ़े था, इसमें हम लोगों ने 9 स्टेजेस वगैरह और किस तरीके से हम गुरु के अधीन होकर जब हम प्रयास करते हैं, जैसा एज इट इज हम फॉलो करते हैं प्रोसेस का, तो उसका रिजल्ट भी हमें दिखता है. तो यदि हम भी पूर्णतः शुद्धता से हरि नाम करें, शुद्ध नाम जप करें, तो Krishna will manifest in our heart. So we'll move. Premati bhara nirbhinna pulakangoti nirvita ananda sampavelino napasham ubhayam mune. क्या बोला है? O Vyasadev, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. क्या बोला?
At that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body becomes separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. कितना गदगद हो चुके थे वो, इतना भाव, इतना ecstasy आया, इतने over. I remember that past time, मुझे वो याद आ रहा है जैसे जब दुर्योधन ने कृष्णा को इनवाइट किया होता है भोजपन भोग के लिए, प्रसादम के लिए, तो कृष्णा जाते हैं मगर उनके भोग नहीं जाते लेने के लिए. So Krishna, instead he went to Vidurani's house, Vidur's house. So Vidurani, when she saw Krishna, because of कृष्णा की शुद्ध भक्ति, जैसे वो हड़बड़ा जाती है, अरे करना क्या है, तो एकदम से वो इतने प्रेम में थी, एक्सटेसी में थी कि वो भगवान को केले खिला रही है मगर वो केले बाहर फेंक रही, छिलके भगवान को दे रही है, इतना वो एक्सटेसी में हो चुके थे. So it happens sometimes devotee मतलब इतना एक्सटेसी में हो जाते, they lost themselves and they couldn't even see Lord. It happens. So it happens similarly here. The Narada Muni was so overpowered by feelings of happiness कि उनके स्वयं के master उनको दर्शन दे रहे हैं, तो he wouldn't able to see himself and the Lord. That was the like absorption in the ecstasy. तो यहाँ लिखा है, spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. देखिए जो आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग जो हम अनुभव करते हैं सुख का और आनंद का, उसको मटेरियल चीजों से, मुंडेन चीजों से कंपेयर तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, कि जो चीज आप यहाँ पा सकते हो उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है, वो 1000 गुना बहुत बढ़कर है मुंडेन चीजों से. Therefore, it is very difficult to give expression of such feelings. तो इसलिए जो हम आध्यात्मिक स्तर पर अनुभव करते हैं उस चीज को एक्सप्रेस करना या बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए कहा जाता है टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग. तो आप खुद ही खाइए तो अनुभव कर सकते हैं, है ना. तो इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि उसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, जाहिर नहीं किया जा सकता. कई बार हम कहते हैं कि शब्द नहीं है हमारे पास बताने के लिए, तो वही बात आ जाती है कि हम उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि क्या अनुभव है. सो वी कैन जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ सच एक्सटेसी इन द वर्ड्स ऑफ श्री नारद मुनि. तो ये तो हम जैसे नारद मुनि बता रहे हैं, तो हम अनुभव सिर्फ ऐसे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा उनका. जैसे रूप गोस्वामी एक बार अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपनी रियलाइजेशन बताते हैं. कहते हैं कि जब मैं जब करता हूँ तो क्या होता है उनके साथ. देखिए जब वो चैंटिंग करते हैं, रूप गोस्वामी की बात बता रही हूँ, जब वो जब करते हैं तो क्या होता है उनके साथ. कहते हैं ये जो 2 शब्द है कृष्णा, कृष्णा वर्ड है ना, 2 शब्दों से बना है, कृष्ण और ना. कहते हैं इन 2 सिलेबल में इतना नेक्टर है, इतना नेक्टर है, इतना नेक्टर है कि I desire I should have thousands of ears and thousands of mouth that I cannot withhold this nectar. ये इतना नेक्टर है, इतना नेक्टर है कि मैं अपने 1000 कानों से इसको होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, अपने चाहता हूँ हजारों मुख हो इसको बोलने के लिए. तो मतलब आप ये लगाओ जैसे हमें कोई चीज बड़ी पसंद हो खाने वाली, तो हमारी मन में ऐसा होता है काश मेरे इतने सारे मुंह होते, इतना पेट होता कि इसको मैं खा पाता. तो ऐसा कहा जाता है ना. खैर ये उसका कंपैरिजन नहीं है जो रूप गोस्वामी बता रहे कि इस हरि नाम इतना नेक्टर है, इतना नेक्टर है, इतना नेक्टर है. आई वांट कि मिलियंस ऑफ मेरे ईयर्स हो, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माउथ हो कि मैं इसको बोल सकूं और सुनूं. मतलब क्या रियलाइजेशन है उनकी. रियलाइजेशन दैट इज रियलिटी वी एक्सेप्टेड. रियलाइजेशन क्या है, जो सत्य है उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो रियलाइजेशन है कि हाँ सच में ऐसा है. तो दैट इज रियलाइजेशन. एंड रूप गोस्वामी की खुद की रियलाइजेशन है कि इतना नेक्टर है. अब हमने अनुभव नहीं किया तो हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, तो जब हम खुद उसको अनुभव करेंगे देन लाइक हाँ ये नेक्टर है. तो फिलहाल तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या रहा होगा, सच में ऐसा हुआ होगा. तो वही चीज है यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं, तो हम थोड़ा सा एक ग्लिम्स, थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि क्या है ये. So each and every part of the body and senses has its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, because in the liberated state the senses are fully efficient in serving the Lord. देखिए अभी तो हम लोग इंद्रियां जो है अभी भी कार्यशील होती हैं, कार्य करती हैं, मगर जब वो पूरी तरह भाव कृष्ण भावान्वित होता तो भगवान वो अवेकन, देयर अवेकन even. कहते हैं when the person is in knowledge, the all senses are illuminated. तो सभी इल्यूमिनेट हो जाती हैं बॉडी में, सभी सेंसेस में, तो पूरी इंद्रियां सफिशिएंट हो जाती है भगवान की सेवा के लिए. So as such in that transcendental ecstasy it so happened that the senses become separately enlivened to serve the Lord. इंद्रियां खुद से को सेवा करना चाहती है भगवान की. This being so, Narada Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. वो खो ही जाते हैं कि क्या क्या हो क्या रहा है.
कहाँ भगवान तो कहाँ मैं, तो इज लाइक ही लॉस्ट टोटली. दैट इज व्हाट ही वाज टेलिंग अबाउट हिज ecstasy when he had the darshan of Lord in his heart. So we'll move further. रूपं भागवतो यत्ता मनाकान्तं सुचापहम् अक्षयन् सह सोतस्ते विक्तव्य दुरमना इव. क्या बोल रहे हैं? The transcendental form of the Lord, as it is, satisfies the mind, desire, and at once erase all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed as is usual when one loses that which is desirable. क्या बोले? The transcendental form of the Lord, as it is, sacrifices the mind's desire. जो भगवान का, जैसे हम मैंने बताया था कि जैसे ध्रुव महाराज थे, अपनी भौतिक इच्छा के लिए वो भगवान के पास गए थे कि मेरा जो राज्य है वो मेरे पिता से भी कई गुना बड़ा होना चाहिए. तो मन की इच्छा थी. जो भगवान के जो दिव्य दर्शन है वो हमारे मन की जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई कर देती है, संतुष्ट. और जब ध्रुव महाराज had the darshan of Lord, he says, what I am after, the pieces of glasses, Krishna, save me. I am all santushta now by having your darshan. So and at once erases all mental incongruities. मतलब उसी समय एकदम से हमारे मन में जितनी भी मलिनता है वो सब खत्म हो जाती है. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed as usual when one loses that which is desirable. तो क्या हुआ, उसके थोड़े समय बाद ही नारद मुनि को विजन जो था, भगवान के दर्शन कर पा रहे थे, वो चले गए. एंड ही बिकम डिस्टर्ब, व्हाट हैड हैपेंड, कहाँ है वो दर्शन. वो बार बार उस चीज को ढूंढ रहे थे, इच्छा कर रहे थे. तो ऐसा रहा. तो बोला है that the Lord is not formless is experienced by Narada Muni. तो देखिए यहाँ नारद मुनि ने खुद ही एक अनुभव किया कि जो भगवान है वो कोई निराकार नहीं है, उनका रूप है, स्वरूप है. But his form is completely different from all forms of material experience. मगर जो उनका जो शरीर है वो दिव्य होता है, हमारे भौतिक शरीर की तरह नहीं होता. For the whole duration of our life, we go on seeing different forms in the material world, but none of them is just apt to satisfy the mind, nor can any of them vanish all perturbance of the mind. अब देखिए हम भौतिक जगत में कई चीजें देखते हैं, कई स्पीशीज देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, इतने सुंदर सुंदर लोग भी देखते हैं कई बार. इतनी अच्छी अच्छी स्पीशीज भी देखते हैं, चिड़िया है, मतलब कई चीजें, मगर मन में वो शांति नहीं आती, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता. मन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है. वाई सो? भौतिक चीजें है ना. These are the special features of the transcendental form of the Lord, and one who has once seen that form is not satisfied with anything else. No form in the material world can any longer satisfy the seer. जैसे कहा जाता है, when you develop the higher taste, फिर लोअर टेस्ट में इतनी आसक्ति नहीं रहती, मतलब मजा नहीं आता छोटी चीजों को हड़पने का. फिर बड़े बड़े चीजों का आस्वादन हो जाता तो छोटी चीजों में कौन जाएगा. तो उसी प्रकार से जब भगवान के दिव्य रूप का दर्शन होता है फिर इंसान कुछ और देखना ही नहीं चाहता. आपका खुद का कभी अनुभव रहा होगा कि आपने कभी ऐसी चीज अगर खाई हो जो बहुत स्वादिष्ट हो, बहुत स्वादिष्ट, उसके बाद आपको कुछ और खाने का मन ही नहीं करता, मतलब नहीं बस चीज तो वही होनी चाहिए, नहीं तो नहीं. तो ऐसा होता है ना. उसी प्रकार से कहते हैं कि लेकिन भगवान का दिव्य रूप इतना सुंदर है कि जब उसके एक बार दर्शन हो जाए, मन क्या होता है, कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती. Like I remember last year I had मैंने भगवान को नहीं देखा. I'm not telling that thing कि मुझे सब दर्शन हुए, नहीं वो नहीं मैं बता रही, मैं कुछ और बता रही हूँ कि जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे एक सीनियर डिवोटी माता जी आए थे. तो भगवान की कृपा से हमें थोड़ा मौका मिला माता जी का पर्सनल संग लेने का. शी वॉज द वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद. सो मार्च अभी इसी समय में, मार्च की बात है, गौर पूर्णिमा से पहले माता जी आए थे. तो 4 दिन मतलब उनका प्रॉपर हम लोग सेवा में रहे. मतलब सुबह हम लोग 2 बजे उठते थे, नहा के अपना जप करके, तो फिर उनके लिए हम लोग प्रसाद बनाते थे, मतलब भोगा बनाते थे, भगवान को अर्पण करते थे. फिर 7 बजे तक हम चले जाते थे उनके पास में, माता जी के पास में. तो उनके पास बैठ के उनका लाइक मी और मेरा कज़न है एक, तो हम लोग सुबह सुबह हम दोनों उठ के तो चले जाते थे जहाँ माता जी रहते थे. वो शादी में आए थे कहीं पे किन्हीं भक्त की. तो हम सुबह सुबह उनके पास जाते थे. सो माता जी हमें काफ़ी अच्छी पास टाइम्स बताते थे राधा कृष्ण की. बहुत सारे हमें हमारे सवालों के जवाब हमें मिले, कई चीज़ों का हमने जाना. सिर्फ मैं और मेरा कज़न होते थे. And it was so intense, and Mataji used to teach us a kirtan, the ragas. And I remember one day
she was telling about one rag, and me and Mataji and my cousin was there. Only we three were there. देखिए इतना पर्सनल एसोसिएशन एक मिलना शुद्ध भक्त का बहुत रेयर है. ऐसी बात नहीं, मुझे मेरा तो बहुत भाग्य रहा है कि गुरुदेव गुरुमाता जी का भी पर्सनल संगा मिला है भगवान की कृपा से. सो इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यून ऐसा मिल पाना कि प्रभुपाद के सीनियर शिष्यों का हमें एक पर्सनल संगा मिलना, उनको पर्सनली सेवा करने का मौका मिलना, तो ये बहुत बड़ी बात रहती है. तो मेरा तो भगवान की कृपा से ऐसे पता नहीं क्या पुण्य कर्म किए, कितना मौका मिला है. तो लास्ट ईयर तो ये रहा. तो माता जी का 4 दिन हम लोग सुबह यही शेड्यूल होता था, मेरा ऑफिस होता था, मैं रोज ऑफिस के लिए मैं 12 बजे पहुंच रही होती थी. मन ही नहीं होता था वो संग छोड़ने का. तो माता जी हमें एक बार तो आई रिमेम्बर हम लोग माता जी हमें को एक राग सिखा रहे थे, एंड इट वेंट सिर्फ हारमोनियम पे बजा रहे थे, माता जी गा रहे थे, उनकी आवाज़ें कुकू बर्ड की तरह थी. जब माता जी कीर्तन गा रही थी तो it was so intense कि when she started crying, I started crying, my cousin started crying, and we three of us was crying and singing the kirtan. It was so observing. I never had that experience. मेरे पास कभी वैसा अनुभव, मैंने अपने 8 साल के या 9 साल में भक्ति में बहुत सारे कीर्तन सुने हैं, मगर ऐसा कीर्तन I have never heard. और हाँ, जैसे ऐसे मतलब पूरे दिन 10-11 बजे तक हमारे जी के पास ही बैठे होते थे, उठ मन ही नहीं होता था. फिर उनको खैर शादी वाला घर था तो और भी फंक्शन, तो फिर हम दोनों जाते थे. मैं अपने ऑफिस चली जाती थी, ही यूज्ड टू गो टू हिज होम, एंड ऑफिस में पूरे दिन एक तो लेट पहुंचते. देखो भगवान की कृपा, ऑफिस में भी कभी तो हमारा कुछ शिफ्टिंग चल रहा था तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा टाइम का कि मैं लेट हो रही हूँ. तो और शाम को मन में यही होता था कब शाम को निकली हूँ ऑफिस से और सीधा माता जी के पास जाए, वहाँ कीर्तन अटेंड करें. तो इवनिंग जैसे ही 5:30 मेरी छुट्टी होती थी ऑफिस से, सीधा स्कूटी पकड़े भागते हुए सीधा उधर पहुंचना. और बाकी जो भक्तगण थे वो 7 बजे तक आते थे, अगर मेरे कजन सबसे पहले पहुंचे होते थे और कुछ सुनने के लिए, माता जी से और कुछ स्टोरी लास्ट टाइम सुनने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तो वैसा उनका अनुभव जानने के लिए. तो ऐसा रहता था. रात को वहां से हम लोग 9, 9:30, 10 बजे निकलते थे. फिर हम लोग रास्ते में देखते हुए, मेरा कजन, हम लोग देखते हुए जाते थे कौन सी सब्जी खरीदी है, कल क्या बनाएंगे. पूरा मेडिटेशन होता था कि कल माता जी के लिए क्या भोग बनाना है या कृष्णा के लिए. तो ऐसा रहता था. तो दैट्स हाउ वी स्पेंडेड आवर 4 days इन अ टोटल प्योर संगा. और उसके बाद में आई कांट एक्सप्रेस द फीलिंग आई हैड कि जब माता जी चले गए यहाँ से मायापुर, उसके बाद में एक्चुअली मेरा गोवर्धन रिट्रीट के लिए मुझे जाना था. वो तो खैर कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, उसमें माता जी ने ही आना था. तो आई वाज लाइक कि दोबारा से संग मिलेगा. और जब माता जी चले गए तो उसके बाद आई कैन टेल यू आई फॉल सिक. मेरे को आई लिटरली फॉल सिक. प्रिया माता जी उस टाइम यहीं पे मेरे घर पे ही थी. तो I literally fall sick. You keep on listening to the kirtanas, this conversation we had, and I literally fall sick, and I don't feel like meeting with anyone. मुझे किसी और से मिलना ही नहीं है. Like आप किसी एक शुद्ध भक्त से मिल लेते हो, आप मिलना ही नहीं चाहते हो कहीं और किसी से. ऐसा मेरा हो गया था, मुझे मिलना ही नहीं है किसी से. I just want to be with माता जी, वहाँ बैठो, कीर्तन सुनो, कुछ सुनो, फिर डिस्कशन हो, हरी कथा हो. तो वैसा रहा. वैसा एक्सपीरियंस था for a 1 week. It took me a lot to like overcome की acceptance now mother is not and I have to be in my normal routine. So वो थोड़ा समय लगा था, but that was my lifelong experience. I cherish those experiences, those days. And the same experience I had with my spiritual master and Guru Mataji when I was with them in Vrindavan in the service, and being with them, attending the classes and listening from them. तो उसके बाद मैं जब भी आती थी, I feel like the separation was there. So don't feel like meeting anyone else and going anywhere. I just wanted to be with them and all. So ऐसा रहता है. तो I'm just sharing. I don't know how much you are able to relate it or all, but I'm just sharing it. So मेरा खुद का ऐसा भक्तों के साथ मेरा ऐसा अनुभव रहा है, शुद्ध भक्तों के साथ में. भगवान की कृपा है कि शुद्ध भक्तों का संग मिला, कहीं सेवा करने का मौका मिला. तो वही चीज़ है जो अभी तक हेल्पिंग मी टू कैरी ऑन विद माय डिवोशनल लाइफ. सो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है. जब हमें एक हायर चीज़ मिल जाती है तो लोअर चीज़ के प्रति इतना टेस्ट नहीं रहता. यू डोंट वांट टू गेट इनटू द लोअर स्टफ. सो वही है, जब भगवान के दर्शन हो गए तो यू डोंट वांट टू सी एनीथिंग एल्स. कहीं और कुछ वो जाना नहीं चाहते हैं कि कहीं और वो कुछ देखें. सो ऐसा था उनका. सो दीज आर द स्पेशल फीचर ऑफ ट्रांस. भगवान के दिव्य रूप का इतना वो है कि भगवान एक बार दर्शन हो जाए, आप कहीं और नहीं जाना चाहते. कौन देखना चाहेगा भौतिक मैटर को, कौन देखना चाहेगा, मजा ही नहीं है. इसमें लिखा that the Lord is formless or impersonal means that he has nothing like material form and is not like any material personality. तो मटेरियल फॉर्म ना होने का मतलब ये है कि भगवान का हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है.
he is not, इसका मतलब ये नहीं कि वो impersonal है, ये formless है. No, he has a very beautiful form. He's a bluish color, wearing the yellow dhoti, having the peacock feather, playing the flute. So beautiful. इतना यहाँ पे वो अपने एक पहनते हैं भगवान कुछ. So it was so beautiful form of Lord. So इतना सुंदर रूप है भगवान का. So the darshan we got of Krishna is through the eyes of the devotees. Pure devotee reveal us how to see Lord and what is his beauty. तो शुद्ध भक्त में बताते हैं भगवान का वर्णन बताते हैं तब. So that's how we can have the darshans. So Lord is not impersonal or something like formless. No, he's so beautiful person. He's a person. A spiritual being have eternal relationship with that transcendental form of the Lord. We are life after life, searching after that form of the Lord, and we are not satisfied by any other form of material appeasement. Narada Muni got a glimpse of this, but having not seen it again, he became perturbed and stood up all of a sudden to search it out. तो जब उनको ऐसा दर्शन हुआ, जब एकदम से वो विजन चला गया, वो खड़े होकर ढूंढने लगे कहाँ है, कहाँ है, वो तड़प, वो सेपरेशन था वहाँ पे. So what we desire life after life was obtained by Narada Muni, and losing sight of him again was certainly a great shock for him. जो आपने इतनी इच्छा की हो, तीव्र इच्छा की और वो आपको चीज मिल जाए, उसके बाद वो गायब हो जाए, वो कैसा लगेगा? You feel like it's a shock. You didn't understood what had happened. So that's what had happened with Narada Muni. So Didrakshishustad aham bhuya pranidhaya manohridhi bhikshimano pina pashyam avitripta ivaturaha. क्या बोला है? I desire to see again the transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and that dissatisfied I was very much aggrieved. तो बोला भगवान ने बोला कि मैं दोबारा उस दिव्य रूप को देखना चाहता था, इतना मैंने दोबारा से कंसिडर किया, इतनी अटेम्प्ट्स की. देखिए, इट्स नॉट आवर अटेम्प्ट्स. हम लोगों ने स्टार्टिंग में गौरलीला का जब मैं बता रही थी, तो मैंने बताया था कि इट्स कृष्णा's mercy we can see him, not by our own endeavors. भगवान की कृपा ही होगी तो वो रिवील होते हैं. तो भगवान थोड़े देर रिवील तो हुए, उनको दिखाया भी. नाउ नारद मुनि इज ट्राइंग, ही वाज सो ईगर, but he was not able to, and he was dissatisfied and aggrieved in that way. क्या लिखा है यहाँ पे? There is no mechanical process to see the form of the Lord. देखिए, मैकेनिकल प्रोसेस हम भगवान को नहीं देख सकते. बोलो कि हाँ अभी भगवान प्रकट हो जाए, भाई he is not your order supplier, you know. तो वो कोई आपके नौकर है? हाँ बोलो बस यहाँ आ जाओ तो वो आ जाए, ऐसा नहीं होता. ठीक है, and no any mechanical process we can see the Lord. It completely depend on the causeless mercy of the Lord. ये हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि it's only by the causeless mercy. जब भगवान की खुद की कृपा है तो he reveal to us. जैसे ब्रह्मा जी के टाइम पे भी हुआ था. जब ब्रह्मा जी भी नाभि कमल से निकले थे, so he also like perturbed, he was bewildered what to do. तो नीचे चले गए, ओशन जब देखा, वेव देखे, घबरा गए, दोबारा ऊपर आ गए, क्या करना है. Then when Krishna sees his sincerity, Krishna then just didn't give the darshan, just say the word tapaha, started doing. So then Lord reveals to him. So it's by his own will Lord comes to us and reveal himself to us. It's not by our own things we can see God. No. It says we are not the seers, but we are to be seen. तो हम लोग सीयर नहीं हैं, हम देखने नहीं जा सकते, बल्कि भगवान हमें देखते हैं. तो उस तरीके से होता है, we are to be seen. We cannot demand the Lord to be present before our vision, just as we cannot demand the sun to rise whenever we like. अब सूर्य को आप बोल अभी उगो, वह जब सूर्य को उगने उगेगा अपने टाइम पे, वो आपके ही अनुसार थोड़ी ना चलते हैं. तो उसी प्रकार से भगवान हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, उनका इच्छा है, अपने स्वीट विल है, तो he will come, he will reveal. Sun rises out of his own accord, so also the Lord is pleased to be present out of his causeless mercy. तो खुद प्रसन्न हो जाते हैं, उनका विल होगा तो out of his causeless mercy he will come. One should simply await the opportune moment and go on discharging his prescribed duty in devotional service of the Lord. तो कभी भी मौका नहीं छोड़ना है, अपनी या प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है हमारी, डिवोशनल सेवा करना, तो वो हमें करते रहना चाहिए. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा आश्रम में क्या कहा है, whether you come in front of me or not come in front of me, but let me remain broken hearted. It's your will, my Lord, but I will remain your दास life after life. मैं आपका क्या रहूंगा, दास रहूंगा जन्म जन्मांतर तक, आपकी इच्छा. आप समक्ष में दर्शन दें ना दें, जैसा भी करे, मगर that will not make me conditional कि भगवान तो दर्शन नहीं दे रहे तो मैं भक्ति नहीं करूंगा. नहीं, that will not make me conditional, but you will remain my Lord life after life. So ये चैतन्य चरितामृत, सॉरी शिक्षा अष्टकम में
भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद ऐसा प्रेयर करते हैं. क्या था वो? अश्लेष्य पदा पिनास्तुमा. I'll read out the verse. Yeah, so Lord Chaitanya says, whether you come in front of me or not come in front of me, no problem. You will remain my Lord birth after birth. So that's what Chaitanya Mahaprabhu himself also prayed. So, so यस, तो जैसे शिक्षाष्टकम का 8वां जो लास्ट श्लोक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्य वा पदारतम पिनास्तु मम आदर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव ना पर मत प्राणनाथस्तु सा एव ना पर मत प्राणनाथस्तु सा एव ना पर. कहते हैं, ओ गोविंदा, feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. Sorry, I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace or makes me broken-hearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipable Lord unconditionally. तो कंडीशंस नहीं रखते हैं भक्त कि आप सामने आओगे तो हम पूजा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. नो, ठीक है. One should simply go on serving the Lord. So Narada Muni thought that the Lord could be seen again by the same mechanical process which was successful in the first attempt. Narada Muni सोचा पहले मैंने ऐसा किया तो अभी भी शायद हो सकता है. But in spite of his utmost endeavor, he could not make the second attempt successful. The Lord is completely independent of all obligation. वो स्वतंत्र है, किसी पे dependent नहीं होते. He can simply be bound up by the tie of unalloyed devotion. भगवान का एक नाम आता है अजीता. क्या कहा जाता है भगवान को? अजीता. अजीता मतलब अनकॉन्करेबल. जीता मतलब कॉन्करेबल. तो भगवान अजीता है, अनकॉन्करेबल है. He can be unconquerable is conquered only by the pure unalloyed devotional service. यहाँ लिखा ना, he simply be bound up by the tie of unalloyed devotion. तो यशोदा माई ने भी तो कितना प्रयास किया भगवान को बांधने से, वो बंधे क्या? नहीं. बट व्हेन ही सीज द सिंसियरिटी एंड द प्रयास और एंडेवर जब उन्होंने देखा और प्रेमा भक्ति देखी यशोदा माई की, फिर ने बोला चलो, फिर वो बंधे अपनी इच्छा से. नहीं तो नहीं बंध रहे थे वो. दामोदर लीला हम सबने सुनी होगी. तो इट्स ओनली बाय द प्योर डिवोशन. नॉर इज ही विजिबल और परसीवेबल बाय आवर मटेरियल सेंसेस. तो भौतिक इंद्रियों से तुम भगवान को नहीं देख पाते. When he pleases, being satisfied with the sincere attempt of devotional service, depending completely on the mercy of the Lord, then he may be seen or out of his own accord. तो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार जब संतुष्ट होते हैं या खुश होते हैं, then he reveal himself to us. Otherwise, that's his own will. So we can't force him, but by the pure devotion we can attract his mercy. So वही कहा जाता है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, don't try to see Lord, but act in such a way that he wanted to see you. So as I said, we are not the seers, we are to be seen. हम seers नहीं हैं, we are to be seen. अब चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाते थे, तो वो गरुड़ स्तंभ पे खड़े होकर भगवान के दर्शन करने का प्रयास करते थे. तो वो क्यों ऐसा होता था? उनको तभी गरुड़ स्तंभ इतना दूर है, वहां से थोड़ी ना इतना दर्शन हो पाते हैं. तो जो जगन्नाथपुरी गए हैं, गरुड़ स्तंभ बिल्कुल बाहर आउटस्कर्ट्स में है. आउटस्कर्ट्स नहीं, मतलब मंदिर के बाहर है, परिसर के. तो जो जगन्नाथपुरी मंदिर गए उनको पता होगा. तो गरुड़ स्तंभ पे खड़े होकर उनको ये होता था कि मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, बट गरुड़ तो उनके वाहक है, तो क्या पता वो शुद्ध भक्त है, उनको देखने के चक्कर में कहीं मुझ पे भी नजर पड़ जाए. ऐसा वो सोचते थे कि हम तो इतने क्वालिफाइड नहीं है कि वी आर लाइक वी आर द सीयर्स. नो, वी आर टू बी सीन. तो एक्ट इन सच ए वे दैट लॉर्ड वांटेड टू सी. तो ऐसा होना चाहिए. सो इट्स बाय द, अगर हम लोग प्रेमा भक्ति अच्छे से करेंगे, सिंसियरली करेंगे, सो मे लॉर्ड गेट प्लीज्ड एंड गिव हिज दर्शन. तो टोटली ही इज टोटली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. जब उनका इच्छा है अपनी फ्री विल से ही विल गिव दर्शन. ओके. Okay, so we will stop here for today. So any of you having any questions, comments or any realizations, so please go ahead. और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं. We are having 5 minutes. So yes, Hare Krishna. Please say yes or no. Don't waste a moment. तो समय व्यस्त मत कीजिएगा. कोई भी कुछ है तो प्लीज बोलिए, और नहीं है तो आप no टाइप कर सकते हैं. So I can end up the session. Yes, anyone has anything to speak up? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. यस पूजा मैम. माता जी मेरे को एक डाउट था, लाइक
जी जो हमारी फिलॉसफी है वो है ना अच्छा अचिंत लिटिल भेद लाउड अभेद। हो जाइए पूजा माता जी, मुझे थोड़ा जोर से बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जैसे हमारी फिलॉसफी है ना मतलब इस्कॉन वालों की कि अचिंत भेद अभेद, हाँ तो जी, ये क्या है? अचिंत्य भेदाभेद क्या है? इसका मतलब ये है वननेस एंड डिफरेंस, मतलब हम एक भी हैं और अलग भी हैं। जो मायावादी हैं वो कहते हैं हम सब एक हैं, मतलब हम भगवान के बराबर हैं। तो आप ही मुझे बताइए क्या हम भगवान के इक्वल हैं? नो माता जी। ये है ना, मतलब ये था हम्म, इसमें कि अचिंत्य भेदाभेद, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक समुद्र है, ठीक है। समुद्र नमकीन होता है माता जी, जी और उसकी अगर आप एक बूंद ले लो समुद्र की तो वो भी नमकीन होगी। जी दोनों बराबर सेम है ना, इक्वल हुए, जी मगर अंतर क्या है? क्वांटिटी का। एक बूंद और हाँ समुद्र में हाँ अंतर तो है ना, बराबर तो नहीं बोल सकते उसको। बिल्कुल। क्वालिटी वाइज सेम है, दोनों नमकीन है, मगर क्वांटिटी वाइज हम्म। अंतर है ना। तो इसको कहते हैं जी अचिंत्य भेदाभेद तत्व, मतलब सेम भी है और अलग भी है। जैसे हम भगवान के अंश हैं, है ना। भगवान सच्चित हाँ आनंद है, इटर्नल है, ब्लिसफुल है, नॉलेजेबल है। तो हम भी उन्हीं के अंश है, तो हम में भी सच्चित आनंद है, हम भी इटर्नल है, ब्लिसफुल है, हम्म नॉलेजेबल है एज अ स्पिरिट। मगर अंतर क्या है? हम्म वी आर जस्ट वेरी इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। तो मगर हमारे हम जैसे सोल का साइज बताया जाता है, इट्स 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। तो इतना छोटे से हम हैं, पार्ट हैं। तो वी आर पार्ट एंड पार्सल हम्म, ऑफ लॉर्ड, वी आर सेम विद द लॉर्ड, बट वी आर डिफरेंस इन अ क्वालिटी, क्वांटिटी। अंडरस्टूड नाउ? जी माता जी। ये होता है अचिंत्य भेद अभेद, ठीक है। ठीक है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग एक नहीं है भगवान के साथ। मायावादी कहते हैं सब एक है, वो गलत है। वो कहते हैं हम भगवान सभी भगवान, तो वो गलत आ जाता है, वो नहीं है। तो अचिंत्य भेद है कि हम सेम भी हैं और डिफरेंस भी है हमें, ठीक है। तो इस तरीके जी। से आया समझ में? जी जी। जी माता जी। और कोई प्रश्न है माता जी? नो माता जी थैंक यू। ये कहाँ पढ़ा आपने अचिंत्य भेद अभेद फिलोसफी? नहीं माता जी, या तो मतलब एक्चुअली थोड़ा बहुत ऐसा सर्च करती रहती हूँ ना, तो उसमें से पता लगा था कि हमारी फिलोसफी है। तो मैं क्या इसका मतलब क्या होता है, लाइक समझ नहीं आया था। मतलब था उसमें वनलेस एंड डिफरेंस, बट मेरे को वो भी नहीं समझ आ रहा था कि वनलेस डिफरेंस किस सेंस में बोला हुआ है। अच्छा, आप तो किताब फिर पढ़ रहे हो इसीलिए। प्रभुपाद की जो मैंने आपको दी, सिविलाइजेशन ट्रांसेंडेंस? जी अभी नोट्स बना रही हूँ, मतलब अभी पहला चैप्टर ही हुआ है। अच्छा, तो अगर सेकंड अभी करना है। बढ़िया बढ़िया, पढ़िए आप उसको प्रॉपरली, ठीक है। जी माता जी। हाँ जी, कोई डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं माता जी। इसमें भी आएगा, प्रभुपाद बहुत बार कोट करते हैं, तो यू कैन रीड इट आउट। ओके, जी जी। thank you Mataji. Okay, no doubts, but wonderful hearing the experience. Thank you for that. Please pray for us also Mataji. I'm praying for all of you. सभी के लिए हम प्रेयर करते हैं माता जी। The chanting of Hare Krishna is a prayer for all of us. So जो chanting हम करते हैं वो सभी के भले के लिए प्रेयर होती है. So that is there. Okay, so we will stop here. I would like to see all of you. I will be very happy if you all come for today's evening class from Mahabhagat Prabhu's class. So please join there 8 p.m. ठीक है। जूम डिटेल आई विल सेंड इन अ डेली साधना ग्रुप, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम, हरे हरे राम हरे राम, राम, राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे हरे। कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद जय। की जय, ऑल द assembled devotees की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द इवनिंग क्लास। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। everyone. हरे कृष्ण।